So now we finally move to our last Rashi for the year 2025. Pisces मीन राशि वाले देखते हैं कि आपके लिए 2025 क्या लेके आया है इन टर्म्स ऑफ लक, लव एंड करियर. Alright, this is your luck, love and career. Okay, all the best. Okay, Hierophant is there in your luck. Superb start. आपको आपके ताले की चाबी आपके गुरु के पास मिलेगी. आपका लक आपके मेंटोर या फिर जिस भगवान को आप मानते हैं, जिस इष्ट देव की आप पूजा करते हैं, उनकी पूजा करने से मिलेगी. ओके, I seriously feel for a lot of people this mentor is Lord Krishna. Okay, the reason I am telling you, although यहाँ पे क्रॉस है with this Hierophant, like Hierophant is usually a priest energy, but the finger posture over here is, you know, reminding me of Lord Krishna. मतलब I don't know if a lot of people has idea about it, but अगर हम भगवत गीता का जो फर्स्ट पेज देखते हैं, when Lord Krishna is conveying गीता to Arjun, तो उनके जो हाथ की मुद्रा है इट्स लाइक दिस. ओके, सो यहाँ पे भी मुझे वही मुद्रा दिखी. So I think for a lot of people it's Lord Krishna you have to seek guidance from for better luck. आपका लक भगवान कृष्ण से आएगा. So do go and seek guidance from him. Okay, for other people I feel कि this could be anyone. Okay, like जिनको भी आप फॉलो करते हैं उनके गाइडेंस से आपको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होने वाला है. एंड मेन थिंग इज स्पिरिचुअलिटी. लाइक it can be any god or it can be any goddess or it can be any divine universal energy you follow or you preach. Okay, but ये मेन है बात कि luck this year for Pisces is coming from surrendering to the universe. Okay, the more you surrender to universe, the more you go and see guidance for your next actions or purpose in life, the more luck you will enhance in your life. Okay, all right, let's check in love. It's King of Pentacles. See, mostly मुझे लगता है कि ये आई थिंक आई डोंट नो बट भी शायद मुझे याद आ रही है, बट एरीज में भी लव में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया था शायद, एंड पाइसिस में भी किंग लव में किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है. सो इट कुड बी कि इस साल किसी पाइसिस और एरीज की मैच बनने वाली है. ओके, क्योंकि मुझे आउट ऑफ द ब्लू याद आया. आई एम नॉट श्योर ऑल्सो बट आई जस्ट गॉट दैट. तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई पार्टनर इस साल आने वाला है, यू नो, हु इज़ वेरी मच करियर ओरिएंटेड. एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि इस साल आप प्यार में मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी दिखाने वाले हैं, लाइक विथ योर पार्टनर. एंड it seems like, you know, you will be too much involved with your career factor कि इमोशनल पार्ट आपके पार्टनर के साइड से आपका थोड़ा सा डाइवर्ट होता हुआ दिख रहा है. ओके, मतलब दिमाग में इतना करियर का फोकस रहेगा, इतना वो इम्पैक्ट होगा कि यू विल, you know, lack that emotional connect with your partner. तो इस साल थोड़ा सा वो ध्यान रखें कि ओके, लाइक करियर बना रहे हैं बट देन ऑल्सो गिव equal amount of time or maybe needed or required amount of time to your loved ones as well. Okay, for a lot of people I feel कि इस साल शायद आप सोच रहे हो कि, you know, I don't want to waste my time in love.
maybe it's because you already got cheated or you already got dumped by someone you had a lot of emotional connect with, and इसी वजह से अब थोड़ा सा कोल्डनेस आ गई है इस साल आपके अंदर कि ओके फाइन, मतलब प्यार व्यार कुछ नहीं है, people just come and go and they just take advantage of your emotions and leave you like that only. So for some people maybe this is the energy कि थोड़ा सा coldness रहने वाला है in terms of luck, in terms of love life. थोड़ा सा आइसोलेशन वाला एनर्जी भी लग रहा है कि you will feel that I don't want to be with anyone. I just want to be alone for a while and मतलब मैं जैसा भी हूँ या जैसी भी हूँ, just leave me like that, leave me alone. I don't want to interact with people. हो सकता है कि ज़्यादा आप किसी से इमोशनली अपने इश्यूज डिस्कस करने में भी कंफर्टेबल फील ना करें. ओके, तो दिस कैन बी the scenario in your love life for Pisces. Try not to be much cold and seek helping hand. Fine. It's 8 of Swords in career. देखो, जब कोई एक एस्पेक्ट पे बहुत बुरा झटका लगता है तो अल्टीमेटली दूसरे एस्पेक्ट पे भी उसका असर दिखता है. नाउ दैट इज ऑल्सो सीन हियर कि मे बी लव लाइफ में इश्यूज के कारण करियर पे भी ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हो. अब ज़्यादा फोकस इसीलिए नहीं कर पा रहे हो कि माइंडसेट ऐसा बना दिया कि छोड़ो, मुझे बस कैसे भी पैसा कमाना है. आई जस्ट वॉन्ट टू मेक माई करियर. आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू इमोशनल स्टफ्स एंड ऑल. बट यू डोंट नो वेयर टू हेड टू. ओके, बस आपको जाना है, बट देयर इज नो वे कि यू कैन go and achieve what you want to achieve in your career or in your like financial abundance wise. बट इसीलिए आपको एक पॉइंट के बाद लगेगा कि यू फील ट्रैप, कि फंस गए हैं. मतलब कुछ नहीं हो रहा लाइफ में, मतलब ना ये कुछ करियर में कुछ कर पा रहे हैं, ना लव लाइफ उतनी अच्छी चल रही है. एंड मे बी बिकॉज ऑफ दिस मेस इन योर लाइफ यू नीड द गाइडेंस ऑफ लॉर्ड कृष्ण. Now this makes very very much sense कि why you have your luck enhanced by a priest or by your mentor or guru or god goddesses जिनको भी आप फॉलो करते हो. Now this makes sense क्योंकि आपको अपनी नॉर्मल लाइफ में रास्ता ही नहीं मिलेगा कुछ सोचने का, समझने का. You just feel trapped and cold and distinct from people. सो यू नीड दिस थिंग, क्योंकि शायद आप किसी इंसान मतलब किसी आसपास के पर्सन से या किसी क्लोज वन से भी अपने इमोशंस को भी शेयर नहीं कर पाएंगे. यू विल बी वेरी कोल्ड एंड प्रैक्टिकल. और ना ही अपने करियर में आपको समझ आ रहा है कि वेयर यू नीड टू गो फॉरवर्ड, क्योंकि ट्रैप्ड फील कर रहे हो. योर थॉट्स आर हॉन्टिंग यू लाइक हेल. सो दैट्स द रीजन आई थिंक यू विल नीड टू गो एंड टेक शेल्टर हियर. It's not a extremely bad year, but maybe this year you need to slow down a bit, take some rest, take guidance and then move ahead. उसमें आपको शायद ग्रोथ भी दिखेगा, क्योंकि अभी इस साल उतना अगर आप ब्लाइंडली चलने लगोगे तो शायद कुछ ना समझ आए. बट इफ़ यू टेक वन स्टेप एट अ टाइम देन डेफिनेटली आपको वे भी दिखेगा एंड यू विल बी एबल टू क्रॉस द पाथ. ओके, चलो let's check the angel guidance. Fine, I'll take this. It says romance. See, देखा? So when you go and seek blessings
जब आपको रास्ता मिल जाएगा, जब आपके सारे इमोशंस को बांटने वाला कोई मिल जाएगा, देन यू विल गेट अ न्यू पार्टनर इन योर लाइफ, अ न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ. ओके, सो डेफिनेटली इस साल आपको मे बी बाय द एंड और बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर और मे बी ड्यूरिंग द मिड ईयर कोई ऐसा पार्टनर मिलेगा. अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, इफ़ यू फील दैट you wasted your emotions on someone and that person has left you in misery, so it's not like कि सब ऐसे हैं. Once you take the shelter, once you again recharge yourself, you will find the right person coming up towards you, and that's happening this year only. So इस साल के मे बी एंड तक आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक सपोर्टिंग पार्टनर आ जाएगा. सो डोंट लूज योर होप. ओके, that's all for Pisces. I wish you all the best.